डॉक्टर साहब टीका लाते सी मगर अज टीका आमिर साहब ने ला छड़िया हुण देंदे चीका मारन लगे सी मिर्जाई ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਹੇਬ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ पे ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ तो मैं ਤਾਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਗਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੰਦਿਆਂ ਦੀ उत्तों ला दो इटली वालियां नूं इटली वाला ना जेड़ा लिखिया की ना है ते क्योंकि मिर्जे कादियानी दी फोटो लग गई है पिछे करे ना नजर दा जेड़ा स्टिकर हां नहीं ठीक हो गया बकवास मेरी हादी है मेरी बग्गा कितों आ गई ਉਹ ਤੇ ਮਜੀਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਤੇ WhatsApp ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕੂੰਗਾ तू जहां भी मिलेगी मैं तुझे ठोकूंगा तो मैं डर गई ਲੱਭੋ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜੀਦਾ ਪਾਵੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਕਿਨੂੰ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਯਕਦਮ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ है इश्तिहार नवा पोस्टर ठीक है तू जो गाली देगा वही मुझसे सुनेगा हाँ बिल्कुल ठीक है साहब कलाम है हजरत मसीह मौत कैसा कलाम है मूत्र ले शलवार ज़ैन जिल्द नंबर ओ तो सफ़ा नंबर ओ तू जो गाली देगा वही गाली मुझसे सुनेगा ਐਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵੱਡੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰਾ ਨੇ ਭੇਤ ਖੋਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕਦਾਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜੌਨ ਤੇ ਸਟੀਵ ਆ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੌਨ ਤੇ ਸਟੀਵ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ यार रसूलुल्लाह मैं हलाक हो गया इसका भी पोस्टर बना दें मुझे भी ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਮੈਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਰਾਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਨੀਮ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਲਿਖਣੀ ਉੱਤੇ ਗੁੰਬਦ ਖਜ਼ਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਰਜ਼ਾਈ ਜਲਦ ਅਜ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚੀ ਵਹੀਂ ਪੇ ਖਾਕ ਜਹਾਂ ਕਾ ਖਮੀਰ ਥਾ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਉੱਤੇ ਗੁੰਬਦ ਖਿਜ਼ਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਜੇ ਕੱਢੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ मिर्जा कादियानी वहां हमारा जहां का हमीर था वाह 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 ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖਣ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਓ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਕਲਾਂ ਮਾਰਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਜਿਹਨੇ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਮਾਰੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਣ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਜੱਸਸ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ 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 ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਦੇਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਚ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੋਜੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਨੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਜੀ ਲਾਇਆ? ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਆਖਣਾ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰ ਕਹਿ ਲਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਲਓ ਬਸ ਸਾਰੇ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੜੈਚ ਚਲਾ ਖਮਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਇੰਟੀ ਕਰੇ ਵੜੈਚ ਤਿਆਰਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ। ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਮਤਿਆਜ਼? ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਧਰ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਈਫ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹਕਮ ਅਦਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹਕਮ ਅਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਿਛਲੀ ਤਲੀਮ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਬੂਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਲੀਮ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰੋ। ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਰੌਣਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ट्रू मुस्लिम साहब वेलकम। थैंक यू। तो जो गाली देगा वही गाली मुझसे सुनेगा। हाँ तो नहीं मिर्जा साहब दा मिर्जा साहब दा कोल मैं नहीं सुनिया पहले, किहड़ी किताब विच लिखिया? देखो ना जी, वाला उत्ते लिखे है, वाला तो कोई नहीं लिखिया। लिखे है पर ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਨਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕਾਦਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਵੇਖ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਲਟਾਉਂਦਾ। ਉਹੀ ਗਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਓਗੇ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੂਤਰਾ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ। ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੋਲ ਛੜੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਨਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਹੀ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਹਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਝ ਮਤਲਬ ਹਮਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੂਰਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ
ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਤਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਕ ਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਮਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇਹ ਅਮਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੈਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹਾਨੀ, ਅੰਦਾਮ ਨਹਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਨਹਾਨੀ ਤਲਕਾਤ ਤੇ ਅੰਦਾਮੇ ਨਿਹਾਨੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੂ ਔਰ ਖੁਜ਼ੂ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੂ ਹੈ ਖੁਜ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਹਿਸ਼ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਹਮਬਿਸਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਹਿਸ਼ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੰਦਾਮੇ ਨਿਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੁਤਫਾ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੁਤਫਾ ਲਜ਼ਤ ਉਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਕੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੁਤਫਾ ਪਕੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮਸਤਕਰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੰਦਾਮੇ ਨਿਹਾਨੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੁਤਫਾ ਗਿਰਦਾ, ਇਹ ਪਿਛਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਾਂ ਰੱਖੋ ਗੋਦ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਰੋਕ ਦਵੋ, ਕਲਾਮੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਾਮੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗੋਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਾਮੇ ਨਿਹਾਨੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੁਤਫਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਜ਼ਤ ਤੇ ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਤੁਣਕੇ ਛੁਣਕੇ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਤਾ ਇਸਤਕਾਮਤ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ, ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਮੀ ਨਿਹਾਨੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਥੋਪੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਲਾਮੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਮਹਿਫਲ ਚ, ਜਿਸ ਮਹਿਫਲ ਚ ਕਲਾਮੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰਸੂਲullah ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। कभी भी नहीं रखोगे मुसलमान साहब। चलो थोड़ा मैं अभी एक बरेलवी ब्राड से क्वेश्चन पूछ के आया हूँ। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर और नाज़िर हैं, वो तो हर उम्मती हाज़िर और की नाज़िर। हर बात तो सुन लो ना, या बाद में भोंकना। आहो अपने हर बात को वो सुनते भौंकने लगे? हैं, वो नोट कर रहे हैं हर उम्मती ओए की सामने बात लिखा है को। तू जो गाली देगा वही और- गाली मुझसे सुनेगा। हाँ, तो ये मैं सुने? आपको बता रहा हूँ ना, ए, रसूलुल्लाह भौंकना वाला लफ्ज क्यों सल्लल्लाहु इस्तेमाल किया है? भौंकना वाला लफ्ज क्यों क्योंकि इस्तेमाल मैं बात कर रहा हूँ, तुम दरमियान में मुझे काट रहे हो। पूरी बात सुनने का हौसला ਇਹਦਾ पैदा ਇਲਾਜ ਇਹ करो। ਹੁੰਦਾ मुझे ਵੀ पता है ਭੌਂਕਣਾ तुम ਨਹੀਂ, शॉर्ट ਭੌਂਕਣਾ। टेम्पर हो, तुम में बात सुनने का हौसला नहीं है। ਇਹਦਾ पहले ਜਵਾਬ पूरी ਇਹ बात ਹੁੰਦਾ सुनो, ਕਿ पहले मुझे ਭੌਂਕਣਾ- बोलने दो ना, मुझे बोलने दो। बोल जब लेने मेरी दो, बात अमर खत्म भाई, हो जाए तो इस्तेमाल फिर किया बात है। करना। ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਭੌਂਕਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਟਾਂਕਾ ਲਾਇਓ। ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬੋਲ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈ ਮੇਰੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜੀ। मेरा सर सिर्फ ये सवाल है कि क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे नबी, मेरी जान उन पर कुर्बान हो, क्या हाजिर और नाज़िर है? अच्छा ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ जी, ਬਸ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। बस सर यही। ਇੱਕ ਜ਼ਾਇਦਮੀਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ? ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੌਂਕੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਮਿਊਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਉਹ ਭੌਂਕੇ ਜੇ, ਇਹ ਉਹ ਭੌਂਕੇ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। हाँ भाई, मिर्जे कादियानी ने की आख्या कि जिससे जदों जाइए किसी मजलिस से जाके आखीदा भौंकना, ते उन्हें आख्या पहला कि यार, जो मैं गाली तू मोहम्मद देगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम ले ओए रहे हैं, मोहम्मद तुसी रसूलुल्लाह दा भौंकने नाम ही तो ना बड़ी ले, गल कर उन्हां रहे दा हो। नाम ही ना ले। और दजाल चुप दे करके पैरोकारा, सुन, चुप दजाल करके दे सुन, पैरोकारा मोहम्मद रसूलुल्लाह दा अपनी गंदी जुबान नाल चुप करके ਉਹ ਸਾਫ਼ सुन। ਨਾ, ਪਾਕ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ?
ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਭੌਂਕਣ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਪਤਾ ਅਲੈहि ਹੈ ਵਸੱਲਮ ਕਿ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਜਾਲ ਰਿਹਾ। ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਮੇਰੇ ਜਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਜ਼ੀਰ ਖੋਲ ਛੱਡਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਜਾਲ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਗਾਲੀ ਦੇਗਾ ਵਹੀ ਮੁझसे सुनेगा। ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਭੌਂਕ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਬੰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਜੀ ਜਾੜ ਨਾਲ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਭੌਂਕਣ ਭਕਾਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਭੌਂਕਣ ਭਕਾਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਤਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੂਤਰਨ ਵਾਲਿਓ ਮਿਰਜ਼ੋਟਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਾਂਤੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਾਂਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਜਾਲ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਉਹਨੂੰ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੇਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਤੀ ਦਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੂਤਰ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੂਤਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਤਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮੂਤਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਬੀਆ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਬਰ ਦੇ ਕਬਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੱਗਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੂਤਰੋ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਤਰ। ਲੇਕਿਨ ਤਮੀਜ਼ ਓਏ ਹਰਾਮੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੁਸੀਂ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਜਾਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨੁਤਫਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੌਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦਜਾਲ ਵੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੋਟੇ। जी शमीर साहब जी क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक। समीर साहब आप सुनाएं। ठीक हूँ मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। समीर साहब आपका तारुफ क्या है यार? आप कभी कभी ब्राड लगाते हैं तो पता नहीं आप कौन है, मतलब आप मुसलमान हैं कि कादियानी हैं? मुसलमान हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मिर्जा कादियानी पर लाने डालते हैं? मैं तो भगवान राम पर भी लानत नहीं डालता। क्या बोल रहे हैं? नहीं, भगवान राम पे तो लानत नहीं डालनी चाहिए क्योंकि उनके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन मिर्जा कादियानी के बारे में तो कुरान ने कहा ना लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। मिर्जा कज़ाब है कि नहीं है? कहता हूँ लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। तो मिर्जा कज़ाब है कि नहीं है? अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर जानता है। उसने नबूवत का दावा किया है, वो सच्चा है कि झूठा है? उन्होंने तो नबूवत का दावा किया है, पता नहीं किया। लाहौरी तो कहता है नहीं किया, लाहौरी कहते नहीं किया। हाँ, ये सेठी साहब आ गए, सेठी साहब से पूछ ले मैं नबूवत का दावा किया है मिर्जा कादियानी ने? पूछ ले इनसे। ये साहब की हाल जोड़ सुनाओ की मसला बड़ा समीर साहब कोई गल पूछना चाहते ने, इन्होंने दस्सिया थोड़ी जी गल। अच्छा सौड़े क्यों पे हुए यार? जो तू वेखो सौड़े पे मैं बिल्कुल रिलैक्स हां। मैं क्या बंदा एक आया है ते मैं उनके बारे जानना चाहना। अगे एक दो बारी इन्हां दी बराड़ ते भी गलबात हुई है, अच्छे आदमी ने, माकूल जे बच्चे ने, लेकिन ये गल कोई पूछना चाहते ने तो उन्होंने पता नहीं, तो उन्होंने कन्फ्यूजन दूर कर दियो। मिर्जा कादियानी ने नबूवत दा दावा कीता है कोई नहीं कीता? यार तुसी किड्डे वड्डे पुराने डिबेटर हो ते तुहानू मेरी मदद दी जरूरत पै गई। नहीं, मैं तो उन्हां दा मुनकर हां ना। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਹਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਸਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰ ਲਓ ਸਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂ। ਓਏ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌੜੇ ਪੈ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਬਿल्कुल नहीं, बिल्कुल। समीर साहब गाल करे। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੱਸੋ यार? समीर साहब बात करें। ਲੈ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਜਾਓ। ਓਏ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, समीर साहब ना गल करो। समीर साहब ना, फिर मैं एक मिनट बिजी हां, मैं आना वा।
ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਗੇਅਰ ਲਾ ਲਓ, ਟਾਪ ਗੇਅਰ ਲਾ ਲਓ ਟਰੱਕ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਮੀਰ ਭਾਈ। अच्छा जी समीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो? ठीक हो? ये आमर नज़ीर साहब ना मेरा बड़ा पुराना असी गुफ्तगू करते रहे हैं, ये आज नहीं, आज 6-7 साल पहले ही बड़े उर्दू में बड़े बात करें, वो इस्लाम इंडिया तो उर्दू अच्छा में बात ठीक करें। ठीक, चलो ठीक। जी जी। तो आमर नज़ीर साहब से मेरी बड़ी पुरानी सलाम दुआ है, लेकिन इतना मैंने इनको हाइपर नहीं देखा जितनी आजकल ये हुए हुए, क्योंकि इनके अपने मुसलमान भाई इनके ऊपर कुफर के फतवे, इनको गालियां निकाल रहे हैं, वो हक बात वाले ब्राट वाले। अच्छा ये समीर साहब ने बात की है? अच्छा एक समीर साहब आप इधर मौजूद हैं? जी जी। तो क्या पूछना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं ऊपर आया था तो ये आमिर नज़ीर साहब ने कहा कि आप मुसलमान हो। मैंने कलमा पढ़ा कि मैं मुसलमान हूँ। जी बिल्कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता हूँ, रसूल मानता हूँ, अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ। तो इन्होंने कहा कि आप जब तक मिर्ज़ा साहब पर लानत नहीं भेजोगे आप पक्के मुसलमान हो। यार आप उनसे बात हो लेने दो यार, एक बीच में क्यों आ गए हो? अगर आप बीच में दखल देंगे तो भाई सुनो बात, या तो आप बात कर लो तो अच्छा इसका जवाब अब आपने देना या मैंने देना है? अच्छा नहीं आपने जवाब देना या मैंने देना है? यार ये देखो बात सुनो, ये टके टके की बरोटों के ऊपर ना ये नहीं बात करते कि हमने ही सिर्फ बात करनी है। शर्म नहीं आई तुम्हें बात करते हुए? शर्म नहीं आई? ठंडी अबू बकर भाई आराम से बात करें, उनको कर नहीं आप नज़ीर साहब आराम से अच्छा गल सुन। नहीं कोई नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ, पहले उनको माजरत करे, पहले उनको माजरत करे। हां माजरत मुजरत ना कराओ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਟਕੇ ਟੁਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਓਹੋ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟੱਕਾ ਟੁਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ ਫੈਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਹੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਨਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜੀ समीर भाई जी समीर भाई की पूछ रहे थे आप? बात कर लें अभी, वो आप उर्दू में बात करें। बात ये है, आप सुन रहे हैं समीर भाई? जी जी। देखें समीर भाई बात ये है कि अल्लाह कुरान पाक में जबर किसी के ऊपर नहीं लाता। सही बात। अगर आप प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उनकी शरीयत को मानते हैं, उनको नबी मानते हैं। ओहो ने नबूवत दा दावा पूछे भी कीता है कि नहीं कीता? यार मैंने गल ते पूरी समझा लेने दो। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉਥੋਂ ਤਫਸੀਰ ਰਾਜ਼ੀ ਤੂੰ। अच्छा मैं जावा फिर मतलब ਤੁਸੀਂ नहीं ਕਰਦੇ। ओहो भाई ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌੜੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ ਯਾਰ, ਭਰਾ ਬਣ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਬਰਾੜ ਖੋਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਮੀਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਹੱਕ ਬਾਤ ਵਾਲੇ ਜਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। अच्छा मैं भूल गया था, तबलीग नहीं करनी। हाँ तबलीग नहीं करनी, पता पाबंदी थोड़ी तबलीग पे। अच्छा माजरत यार। अच्छा समीर भाई बात ये है, फिर उर्दू की गल करनी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। समीर भाई आप सुन रहे? जी जी। हमारा मैं जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। इन लुपाइयों का ये इतराज़ है कि हम अलैहिस्सलाम ना कहें। चलो इनका ये जबर कर रहे हैं हमारे ऊपर। मुझे अभी इल्हामन बताया गया है कि मिर्ज़ाई नहीं बताएगा कि मिर्ज़ा नबी था या नहीं। बताएंगे। अमर नज़ीर साहब अब एक फिर बोल पिया ना बंदा विच, बस यार मैं चुप कराना पिया, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। मैं अमर भाई यार एक मसले ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ मेरी ਕੀਤਾ? पुरानी जारी है, बस गल खत्म होगी। जवाब अच्छा, 2 मिनट तक हो गए जी, हो गए जी।
उन्हें जवाब कभी भी नहीं देना। यार समीर साहब ये जवाब ही नहीं देते आपको, हम क्या करें? इनसे पूछ लो कभी मिर्जा साहब नबूवत का दावा किया कि नहीं किया, इसमें हमारा क्या कसूर है? वो लोग तो कहते हैं कि किया है, क्या कह रहा था? लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि किया है नबूवत का किया दावा है, किया है, ठीक है, हम भी कहते हैं किया है। तो आप उस दावे को सच्चा मानते हैं कि झूठा मानते हैं? को बात क्या है कि मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानता हूँ। आखिरी नबी मानते हैं, तो फिर हाँ। मिर्जा कादियानी का जो नबूवत का दावा है फिर उसको तो सच्चा नहीं मानते ना, झूठा मानते हैं ना? देखिए अगर मैं मानता तो मैं अहमदी होता ना। तो नहीं, हम यही तो हम पूछ रहे हैं कि अगर आप मिर्जा कादियानी के उसके दावे को झूठा मानते हैं फिर तो आप अहमदी नहीं हैं, वरना आप अहमदी हैं। अब हमें तो पता नहीं है कि आप अहमदी हैं या नहीं हैं, यही तो मैंने सवाल किया आपसे मेरे भाई कि आप अहमदी हैं या मुसलमान हैं, इसी से तो भैया, बात अगर छिड़ी। देखो बात क्या है कि अगर मैं यहूद होता तो मैं कहता कि मैं यहूद हूँ, अगर हिंदू होता तो मैं कहता कि मैं हिंदू हूँ। तो मैं जब बोल रहा हूँ आपको कि मैं अहमदी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखता और मैं मुसलमान हूँ। असल बात यह है समीर भाई, बात यह है कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर लोग आके अपना वो तारुफ नहीं करवाते जो असल तारुफ होता है, लोग बताते कुछ और हैं होते कुछ और। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपसे हमारी ज़्यादा वाकफियत नहीं है, आप अच्छे आदमी मालूम होते हैं, तो आप हमारी थोड़ी मदद कर दें और बता दें कि आप मिर्ज़ा कादियानी को झूठा मानते हैं या सच्चा मानते हैं, ताकि हमें आपकी बात पर अन्य एतबार करने की बजाय हम उनके देख बारे लें में कि तो मैं देखो बात क्या है कि मिर्ज़ा साहब के बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे। तो अगर जानकारी ज़्यादा ना हो तो उस पर म्यूट रखो। क्या खामखा एक बेगुनाह नहीं, पर आप ज़्यादा जानकारी नहीं रखते तो हमने कौन सा पूछा है कि रूहानी ख़ज़ाइन की कितनी जिल्दें हैं, मलफूजात की कितनी जिल्दें हैं, इश्तिहारात कितने लिखे हुए हैं, ये तो नहीं हमने पूछा। हमने तो यही पूछा कि जो उन्होंने नबूवत का दावा किया है, जिसको आपके सामने सारा दिन जमात अहमदिया यहाँ ब्रॉडें लगा के कहती है कि नबूवत जारी है और मिर्ज़ा कादियानी का नाम लेके अलैहिस्सलाम कहती है, आप उनको उनके दावे में सच्चा जानते हैं या झूठा जानते हैं? हमने भी तो आसान सी छोटी सी बात पूछी है वाकफियत हासिल करने के लिए, कोई गलत बात तो नहीं कही हमने भाईजान। हाँ, वो लोग जो कहते हैं कि नबूवत जारी है वो सूरे आराफ आयत 35 की तावील करते हैं, जैसे कि हम लोग तावील करते हैं उसी तरह वो भी तावील। मैंने ये नहीं पूछा कि वो दलील क्या देते हैं, मुझे उनकी दलीलें मैंने देखी हुई हैं। सूरा आराफ की आयत का मैं जवाब दूंगा, वो कर लेंगे बात। उनकी दलीलें हमने तोड़ के उनके मुंह में डाल दी हैं, वो झूठ बोलते हैं, कुरान पर झूठ बोलते हैं। नहीं, बात क्या है कि आप इस तरफ तावील करते वो उस तरफ तावील करते। मैं कहता हूँ नहीं, हम तवील जो करते हैं ना, हम सिर्फ उस कलाम की तावील करते हैं जिसके ज़ाहिरी मानी मुराद लेने मुमकिन नहीं होते। हम इस तरह की बेहयाई वाली तावील नहीं करते। उसको छोड़ के फिलहाल आप भी ऐसा करें ना, अब्दुल जब्बार की तरह हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। आप बताएं कि उसके दावा नबूवत में आप उसको सच्चा मानते हैं या झूठा मानते हैं? मैंने तो जवाब दे दिया आपको कि मैं नहीं मानता किसी को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। नहीं, वो तो ठीक है, आप किसी को नहीं मानते, तो फिर उसका जो दावा है या वो सच्चा है या झूठा है, आप क्या मानते हैं? उनके ऊपर ज्यादा तहकीक नहीं की मैंने, इसलिए झूठा नहीं कह सकता मैं। और मतलब सच्चा भी हो सकता है आपकी नज़र में। अगर आप तहकीक करें, गौर व फिक्र करें और आपको वहां पर कोई दलील नजर आए तो आप उसको सच्चा भी मानने के लिए तैयार है ना? अगर कुरान उनका साथ दे रहा हो तो मैं भी उनका साथ हूँ। हाँ, यानी कुरान से कोई ऐसे मानी निकाल लिए जाएं जिनसे साबित हो कि वो नबूवत के दावे में अपने में झूठा नहीं है, तो आप उसको सच्चा मान लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सही बात। तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने माना नहीं है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार हैं, मानना चाह रहे हैं। मतलब दलील होगा तो मान लेंगे। हाँ, तहकीक करना तो देखो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है हमें कि हर बात का तहकीक करो। अगर झूठा इंसान भी आपके पास कोई बात लावे तो पर तहकीक करना चाहिए। हाँ, तो अगर हम मिर्जा कादियानी का झूठ आपकी आंखों के सामने रख दें तो आप
मान लेंगे कि ये तो झूठा शख्स है, इसकी फिर किसी बात पर एतबार नहीं किया जाएगा, ऐसा ही है? नहीं, आप तो उसकी मुखालिफ जमात से हो, तो आप जो भी बोलोगे उसके खिलाफ ही बात करोगे। नहीं, हम तो उसको खिलाफ हैं तो खिलाफ ही बोलेंगे, लेकिन कोई दलील तो पेश करेंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो हमारे सामने दलील पेश करेंगे तो आप मान लेंगे, तो अगर मैं दलील जी पेश करूं तो आप नहीं मानेंगे, कहेंगे कि तुम तो मुखालिफ हो। नहीं, मैं उनकी भी नहीं मानता, आपकी भी नहीं मानता, मैं अपनी तरफ से तहकीक करता हूँ हर चीज़ पर। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आपके सामने अगर मिर्जा कादियानी का झूठा होना साबित कर दिया जाए कि वो झूठा शख्स था, झूठ बोलता था, अपनी किताबों में झूठ बोल कर गया है, तो आप उसको झूठा मान लेंगे, फिर तो उसके किसी तावील, किसी तहरीफ, किसी तहरीर को नहीं मानेंगे ना, फिर तो कहेंगे कि ये झूठा आदमी है। जी, हाँ, ये सही बात है आपने। ये जी सही बात। तो ये है जेंटलमैन बात। आपके सामने हम मिर्जा कादियानी की 2-3 बातें रखते हैं, आप उनको देखकर आप गौर व फिक्र खुद करके बताएं कि क्या इस शख्स ने झूठ बोला है या नहीं बोला। अगर ये झूठ ना हुआ फिर तो आप इस पे गौर करना, लेकिन अगर साबित हो जाए कि इसने झूठ बोला हुआ है और आमदन झूठ बोला हुआ है, जानबूझकर झूठ बोला हुआ है, फिर तो ऐसे शख्स की बात की वैल्यू ही खत्म होगी ना, फिर तो हमने ठीक मानना है, ही नहीं है। ठीक है ना जी? ठीक है, बिल्कुल। अभी मैं पेश करता हूँ, 1 सेकंड होल्ड रखें। चुप कर पुत्रा की कहता है, चुप कर पुत्रा नहीं पेट खोली दे, लीडर नहीं इत्थे हकदार गोली दे। अच्छा जी, आपके पास कोई एक्सेस है उनकी वेबसाइट की, किताब उनकी कोई उनकी वेबसाइट से डायरेक्ट खोल सकते हैं आप समीर भाई? मेरा तो देखो अभी मैं नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता हूँ। आप कहाँ क्या पर मैं हैं अभी, इंडिया में हैं कि बाहर हैं? नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। ऑस्ट्रेलिया आप ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में तो खुल जाती वेबसाइट उनकी। खुल जाती है, सही बात है। देखो बात क्या है कि अभी पीछे जाना होगा ना मेरे को, फिर वो ड्रॉप हो जाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा, यानी आपकी आंखों के सामने लगा दिया जाए तो फिर आप देख लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, ओके हो गया। आमिर भाई जरा दो भाई है ने ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ तो है कि ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਲਓ, ਨਾਲ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ जी ਅੱਗੇ जी ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਾਂ। जी हाँ मलीद साहब जट साहब माइको लेवरा जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम भाई तारफ करा दो भाई। वलीद मोहम्मद वलीद मेरा नाम है। मैं मैनचेस्टर से ताल्लुक़ रखता हूँ। कहाँ रहते हैं मैनचेस्टर यूके मैनचेस्टर मैनचेस्टर। यूके मैनचेस्टर हाँ जी, जी ठीक हो गया और फिका के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत। माशाल्लाह तबारक अल्लाह चलें एक बस सेकंड यास्मीन भाई की गुफ्तगू खत्म होती है तो आपके साथ मैं एक करा छोटी सी बात करनी थी, क्योंकि दूसरे भाई बड़ा मेंशन कर रहे थे, जी जी मिर्ज़ा साहब करके कह रहे थे बार बार, और ये भी साथ हम्म में कह रहे थे कि मैं नहीं मानता हूँ। हम्म, हम्म, तो बस मैंने ये आगे बोलना था, भाई आप नहीं मानते तो साहब क्यों कह रहे हैं आप उन्हें, या उसे, या वो जो भी कह लो। जी 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 बस इसलिए मैंने आया था। मैंने कहा भाई तो कह रहे थे मैं वलीद भाई नहीं एक मानता, मेरी बात लेकिन सुने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट दे रहे थे। नहीं नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट मतलब हम अगर उसको नहीं मानता तो मैं क्या कहूँ, मैं कुत्ता कहूँ उसको बोलो, कि मैं समीर नहीं साहब क्या मानता? हो गया सवाब मिलेगा। समीर एक सेकंड वलीद साहब आप मुझसे अच्छी बात करें बात है प्लीज यार। प्लीज समीर नहीं साहब मुझे छोड़ो, मुझसे बात करने जी दें जी मुझसे बात कर जी जी हाँ वलीद साहब यानी कि कोई भी पैगाम जो हक का पैगाम होता है ना उसको मसलहत के तहत वो अगले बंदे तक पहुंचाना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जब आप किसी को जाके डायरेक्टली उसकी ज़ात या उसके किसी भी ऐसे मनसब के ऊपर बात करेंगे तो वो असरअंदाज नहीं होगी। ठीक है, हमारा जी जी मकसद सिर्फ और सिर्फ हक पहुंचाना जो जो हम समझते हैं, बल्कि समझते नहीं है ही हक है, जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम और सल्लल्लाहु उनकी अलैहि ज़ात अक़दस की तलीम, जो भी उनका जो पैगाम है वो पहुंचाना। यानी कि एक हमने सिर्फ एक पहलू पकड़ा हुआ है वो है वसल्लम। ख़त्म नबूवत, तो उसको जी पहुंचाने के लिए मसलत की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। जी तो इस वजह से हम कहते हैं, अदरवाइज़ हम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को लानती कज़्ज़ाब दज्जाल मानते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सल्लल्लाहु अलैहि मान के कहते हैं। ठीक है, वसल्लम। जी
بہت بس شکریہ میرے اتنی بات کرنی تھی میں نے جی ویسے. جی بہت شکریہ جزاک اللہ، بہت شکریہ. میں آپ کسی اور کو موقع دوں گا آگے آ کے بات کریں. جی ٹھیک ہوگا جی جزاک جج اللہ، صاحب آپ السلام مائک علیکم. کو نظر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم. آپ سنیں، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک حکم کریں جی متعارف ہو جائے گا میرا نام محمد اعظم ناگرہ ہے. جی جی ادھر عمان میں رہتا ہوں میں. ماشاء اللہ فقہ کے لحاظ سے میرا تعلق جو ہے نا اہل سنت والجماعت سے ہے. ماشاء اللہ جی تو میں نذیر بھائی کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں جی جی کہ احمدی ہم ہیں، یہ قادیانی ہیں، اور قادیانیوں پہ تا قیامت لعنت بھیجتے رہیں گے ہم انشاءاللہ جب تک زندگی ہے. لعنت کا تو حقدار وہ اسی وقت ہو گیا تھا جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور لعنت کا تو جی کون حقدار وہ اسی قادیانی ہے؟ وقت میں قادیانی ہوں، آپ کہہ نہیں رہے نہیں ہیں نہیں میں سمیر قادیانی؟ صاحب آپ سے نہیں بات ہو رہی، وہ عامر بھائی کو کہہ رہے ہیں، نذیر عامر کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. لعنت کا حقدار وہ تو تو اسی مہربانی ہوگی اگر احمدی کی جگہ جو ہے نا قادیانی کا لفظ استعمال کر لیں تو. اعظم ناگرہ میں صاحب یار اگر آپ سارے بھائی ہمیں آپ تبلیغ کرنے آئے ہیں، سارے ہمیں بتانے لگے ہیں کہ ہم نے کیسے بات کرنی ہے، کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، کون سا نہیں استعمال کرنا ہے. سارے ہمیں یار اب مت دینے آ گئے ہیں. آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے اپنے طور پر جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ ایسے کریں، ہمیں اپنے طور پر بات کرنے دیں. جی بھائی، جی آپ کو میں عامر نے بھائی جو نے کہا بات کرنی تھی میں نے کر دی ہے. جی آپ کسی اور بول رہے ہیں اوپر. آپ کی رائے کا بہت شکریہ انشاءاللہ. وہ جب ہوتے ہیں نا ہم بیٹھے ہوتے ہیں جب اپنا جی یعنی کہ جو ہوتا ہے تو ہم اس کو جیسے جس طرح مخاطب کرنا ہوتا ہے نا اسی طرح مخاطب کرتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کی رائے کا. اگر جی ٹھیک ہے، کسی اللہ اور کو حافظ. موقع دیں پلیز شکریہ. جی چشتی صاحب کدھر گئے ہیں جی چشتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک بہت شکریہ آپ کا. جی سر حکم کریں. جی میں ایک آدمی کی وہ سن رہا تھا، وہ جو قبل پہلے یہاں جی پر بیٹھے تھے چلے گئے ہیں. جی جی تو میں بھائی صاحب بڑے پیارے انداز کے ساتھ بتا رہے تھے، ان سے پوچھ رہے تھے، وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے. جی اور جو ابھی آپ ان سے جواب طلب کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ثبوت چاہیے کہ وہ قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا یا نہیں کیا. یہ کہہ رہے ہیں مجھے شک پر ہے، اگر قرآن دلیل دے تو میں مان لوں گا. وہ کوشش کر رہے ہیں جی ان کا شک دور کرنے کی، ٹینشن نہ لیں جی جی، چشتی صاحب مگر انشاءاللہ. یہاں پر اسلام اس چیز کا نام ہے، حضور کی ختم نبوت کا شک کرنا بھی کفر ہے. بے شک بے شک بے شک. ہمارا نظریہ ہے. میں نے بخاری شریف 3 سال پڑھائی ہے. میں نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ جس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت کرنے والا بھی کافر ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے، اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، اس کا ثبوت دینے والا بھی کافر ہے، اس کی شہادت کرنے والا بھی کافر ہے. تو اس کا مطلب ہم سب یہاں پر کافر ہو گئے ہیں. یہ دلیل جی دینے نہیں، والا حضور لان قرآن لینے کہتا ہے والا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم اچھا النبیین. میں چشتی بھائی صاحب کو چشتی اتنی صاحب پہ بیان دے رہا ہوں، چشتی صاحب اللہ چشتی صاحب سلامت رکھے. چشتی صاحب سوری معذرت. آپ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہم سے مخاطب رہیں، اور جی جو چیز آپ نے یہ بیان کیا ہے میرے خیال سے یہ جناب عباس سے مروی ہے یہ روایت. بے شک ایسے ہی بے شک، ایسے ہی جی جی. بالکل تو سونی بات ہے. ہاں جی جی. بالکل. تو تو اللہ آپ جی کو سلامت رکھے، اور ان کو بے نقاب کرنا یہ جہاد ہے. بہت شکریہ. میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت لیتا ہوں. بھائی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نذیر بھائی یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھی طریقے کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. اللہ ان کو سدا سلامت رکھے. جزاک اللہ آمین خیر. آمین آمین آمین. بس یہ ان کی ضرورت ہے ہمیں. نہیں، بہت وہ میں نے ان کو بڑا پسند کی ہے. یقیناً کہ میں نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا، بہت اعلیٰ قسم کے ساتھ. دیکھیں نا کہ انداز بھی، گفتگو، طریقہ کار بھی. ہم لوگ ممبر پر بیٹھنے والے ہیں تو، مگر ہاں کہ اگر یہاں پر دلیل کی بات آئے گی تو الحمدللہ قرآن کی آیات ہی ایسی پڑھیں گے کہ یہاں سارا کچھ کا خاتمہ ہو جائے گا.
पता बेशक चल जी जाएगा कि हजूर बेशक। खातम नबीयीन थे या नहीं। अच्छा चिश्ती साहब मादरत के साथ आमिर भाई ने हवाला लगा दिया मिर्ज़ा कादियानी की किताब से, तो उनको ज़रा बात करने देंगे, सो प्लीज़। हाँ भाई समीर साहब, आवाज आ रही है? आमिर भाई एकदम माइक जी म्यूट कर लो एक आईडी का। ओके हो गया हूँ ठीक है। जी जी और बेहतर है। समीर साहब आप ये पढ़ सकते हैं जो कुछ लिखा हुआ है सामने? पढ़ सकता हूँ मैं। हाँ दर हकीकत ये आजिज़ मिन जानिब अल्लाह क्योंकि खुदा ताला एक मुफ्तरी की पेशगोई को जो एक पता नहीं यार मैं पढ़ नहीं सकता इसको, छोटा छोटा है ना वो। आप खुद हम पढ़ पढ़ दे दे। इसको। हाँ 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 यकीन करेंगे फिर। मैंने समझा मेरा माइक अनम्यूट है तो मेरा माइक म्यूट था, माजरत भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऊपर से नहीं पढ़ा जा रहा, आखिरी 2 लाइनें मैं पढ़ने लगा हूँ, ज़रा ध्यान रखें आखिरी लाइनों पर। खुदा ताला साफ फरमाता है इन अल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कज़्ज़ाब। सोच कर देखो कि उसके यही माने हैं कि जो शख्स अपने दावे में कज़्ज़ाब हो, काज़िब हो, उसकी पेशगोई हरगिज़ पूरी नहीं होती। ठीक है, अभी आपके सामने मिर्ज़ा साहब के दावे की सच्चाई या किज़ब सामने आने लगा है, आपकी आंखों के सामने उन्होंने एक असूल पेश कर दिया है। आपने सुन लिया ये असूल कि जो बंदा एक दावा करता है, नबूवत का दावा करता है, अगर वो अपने दावे में काज़िब है तो उसकी पेशगोई हरगिज़ पूरी नहीं होती। ठीक ये ठीक होगी बात? जी ये मिर्ज़ा साहब की अपनी ही लिखी हुई बात है। सही बात। अब आप ठीक। आगे देखना जरा, एक सेकंड यार। तो इसमें क्या इख्तिलाफ की बात है? मैं ये तो नहीं, इसमें तो कोई इख्तलाफ है ही नहीं, मैं तो इससे मुत्तफिक हूँ। अभी तो देखते फिर हैं। एक सेकंड, जल्दी ना करें मेरे भाई, जल्दी ना करें। मुझे मैं ना टेबल कुर्सी रख के तो वो नहीं कर रहा, मैं वो गाड़ी है उस पे वॉशिंग पे लगी हुई है, तो मुझे मौका दे दें कि मैं बात पूरी कर लूँ बस। अब आप ये देखें, ये है मिर्ज़ा कादियानी के अपने हाथ की तहरीर, जिसमें वो कहता है कि तकरीबन 17 या 18 साल पहले का वाक़या है कि मैं एक दफ़ा शेख मोहम्मद हुसैन बटालवी के पास गया था। 18 बरस के करीब अरसा गुजर गया है कि मुझे किसी तकरीब से मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी जो एडिटर हैं रसाला शाह सुन्ना के, उनके पास जाने का इत्तफाक हुआ। उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया कि आजकल कोई नया इल्हाम हुआ है, तो मैंने कहा कि ये इल्हाम हुआ है जिसको मैंने कई अपने मुखलिसों के सामने भी बयान किया है। और वो क्या इल्हाम है? वो ये इल्हाम है बिक्रम व सय्यबुन, जिसके ये मानी हैं कि एक सेकंड, मुझे दूसरी ऐनक लगा लेना दे यार। कोई पढ़ सकता है बंदा और जी जिसके अमर ये भाई मानी, मैं पढ़ जिसके देता क्या हूँ। मानी लिखे हुए हैं? बिक्रुम व सय्यबुन, जिसके ये मानी इनके आगे और नियत हर एक के आगे मैंने जाहिर की है कि खुदा ताला का इरादा है कि वो औरतें मेरे निकाह में लाएं। दो औरतें मेरे निकाह में लाएगा, एक बिकर होगी और दूसरी बेवा। हाँ, बिकर का मतलब कवारी होता है समीर साहब। वो कहता है कि 2 औरतें मेरे निकाह में आएंगी, एक बिकर होगी और एक बेवा होगी। ठीक है जी। अगर अच्छा। मिर्ज़ा कादियानी की जिंदगी में ये 2 औरतें ना आई हों तो पेशगोई झूठी साबित हो गई। हाँ, अगर ना आई हो तो से 1 मिनट, तो उन पर एक इल्हाम हुआ था कि मेरी जिंदगी में 2 औरतें आएंगे, जो एक क्या होगा? एक बेवा होगी, एक कवारी होगी। अच्छा, तो ये इल्हाम हुआ था उन पर। इल्हाम हुआ था बिक्रम व सय्यबुन। अच्छा, तो ये फिर हुआ या नहीं हुआ? यही तो हम चेक करने लगे हैं ना। अगर मिर्ज़ा कादियानी की जिंदगी में किसी बेवा से कभी निकाह हुआ हो
और एक कवारी भी आई हो, कवारी से तो हुआ है, कवारी तो 2 से हुआ ना, 2 शादियां उसने की, दोनों कवारियां थी। हुरमत बीबी से निकाह किया था, वो भी कवारी थी। फिर नुसरत जहां बेगम से निकाह किया था, वो भी कवारी थी। उनसे निकाह होने के बाद उसने ये इल्हाम बयान किया। चलें उसको छोड़ दें, कवारी को छोड़ ही दें, हो गई, पहले ही 2 कवारियों से निकाह हो गया था। बेवा से निकाह उसकी जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ। अगर किसी बेवा से उसका निकाह हुआ हो तो फिर उसकी ये पेशगोई सच्ची माननी पड़ेगी। अगर नहीं हुआ तो ये पेशगोई झूठी होगी कि नहीं होगी? हाँ ऐसे ही तो, हाँ ऐसे ही बिल्कुल हाँ, सही बात। तो जिसकी पेशगोई झूठी हो उसके बारे में उसने क्या लिखा है? खुद उसने ये कहा है कि जो अपने दावे में काजिब होता है उसकी पेशगोई कभी पूरी नहीं होती। ये देख लें उसके अल्फाज, जो शख्स अपने दावे में काजिब हो उसकी पेशगोई हरगिज पूरी नहीं होती। कहां से? इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कज़्ज़ाब, यानी जो कज़्ज़ाब है, मुसरिफ है, उसको अल्लाह हदायत नहीं देता। ये तर्जमा है, लेकिन उसने उसकी ये तफसीर की है कि जो बंदा अपने दावे में काजिब हो उसकी पेशगोई पूरी नहीं हो सकती। लो जी, पेशगोई आपके सामने रख दी है मैंने भाईजान। अगर आप किसी कादियानी से पूछ के आओ कि उसका किसी बेवा से जिंदगी में निकाह हुआ है तो आके मुझसे मुंह मांगा इनाम लेना, आप मुंह मांगा। अच्छा तो ये बात है। हाँ हाँ, तो जब किसी बेवा से निकाह नहीं हुआ तो वो अपने दावे में झूठा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। अब आप उसको झूठा कहेंगे कि सच्चा कहेंगे दावे में? अगर ऐसी बात है जिस तरह आप बता रहे हो तो वो झूठे थे। झूठा आदमी, झूठा आदमी। आप इसको रिकॉर्ड कर लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अभी बेशक यहाँ से उतर कर चले जाएं, मिर्जाइयों की बुराडें लगी हुई हैं। आप उनसे पूछें कि किस बेवा से मिर्जा कादियानी का सारी जिंदगी में निकाह हुआ है। अगर वो पेश कर दें तो हम यहीं बैठे हैं, आकर मुझसे मुंह मांगा इनाम ले लें। अगर अच्छा वो ये कहें, कौन सी सफ़ा है? रूहानी खजाइन, ये 15वीं जिल्द का ऊपर सफ़ा लिखा हुआ है। अबू बकर भाई बताना यार, नजफ भाई 201 सफ़ा शायद। हाँ 201 सफ़ा है, तरियाकुल कुलूब किताब का नाम है। किताब का नाम तरियाकुल कुलूब है, 15वीं जिल्द है रूहानी खजाइन की, 201 सफ़ा है। उनको पूछो भाई, दूसरी का भी वाला दे दे जी, वो पहले तो वो वाला पेश करो। हाँ नहीं उसकी जरूरत नहीं, वो तो इन्होंने पढ़ लिया ना, वो तो मैं दोबारा लगा देता हूँ। उसका लेना है तो ले लें, वो एक असूल उसने बयान कर दिया है। क्या किताब का नाम क्या? आपने किताब का नाम क्या? तरियाकुल कुलूब लिखा था पहले। तरियाकुल कुलूब। सही है। तो ये जो है, ये है रूहानी खजाइन की 5वीं जिल्द आईना कमालत इस्लाम। इसका ये 323 सफ़ा है। इसमें उसने ये बात लिखी है कि जो शख्स अपने दावे में काजिब होगा उसकी पेशगोई कभी पूरी नहीं होती। अच्छा एक मिनट, ये कौन सी किताब है? 5वीं जिल्द है रूहानी खजाइन की, सफ़ा 323 है गलबन। क्या लिखा है नजफ? सफ़ा 323 और 321, 322। 322 और 323 के दरमियान में, एक लाइन उसकी एक लाइन उसकी। अच्छा रूहानी खजाइन जिल्द 5वां है ना? हाँ हाँ, सफ़ा 322-23। आईना कमालत इस्लाम, आईना कमालत इस्लाम। अच्छा, किताब का नाम आईना कमालत इस्लाम। रूहानी खजाइन उसका सेट है ना किताबों का, उसका वो जिल्द का नंबर है 5। तो फिर अगर इस तरह, तो फिर वो अहमदी मुसलमान क्या कहते हैं इसके बारे में? अब आप जाकर पूछ लें उनसे। आपने तो अपना फैसला करना, उनको छोड़ें। वो तो झूठे हैं, वो इस पर पंचर लगाते हैं, कुछ का कुछ पंचर लगाते हैं, मानते नहीं हैं। आपने अपना फैसला करना है कि जो शख्स अपने दावे में झूठा है उसकी पेशगोई पूरी नहीं हो सकती। उसने पेशगोई आपके सामने की है कि मेरा एक बेवा से और एक कवारी से निकाह होगा। बताएं किस बेवा से निकाह हुआ? कभी भी नहीं हुआ। कुछ सही बात है। अगर उन्होंने पेशनगोई की थी और उन्हीं के उसूल के मुताबिक जो गलत इंसान हो उसकी पेशनगोई सच नहीं होता, तो फिर अगर गलत नहीं, काज़ब फिर उनका पेशनगोई सच नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर तो सवाल बनता है। तो काजिब कहना पड़ेगा, काजिब कहना पड़ेगा। आपको मैंने मजबूर नहीं किया कि आप जरूर उसको कज़ाब कहें, लेकिन आपसे मैंने सवाल किया है
कि क्या ऐसे शख्स को उसके दावे में कज़ाब कहना पड़ेगा या सच्चा कहना पड़ेगा? कज़ाब कहना पड़ेगा, क्योंकि उसका अपना असूल है कि भाई अगर झूठा है दावे में तो वो पेशगोई पूरी नहीं हो सकती। और पेशगोई आपके सामने है। वो कहता है एक कुंवारी से मेरा निकाह होना है, एक बेवा से। अब बेवा से तो निकाह सारी जिंदगी नहीं हुआ, किसी भी बेवा से नहीं हुआ, किसी मखसूस बेवा को उसने नाम नहीं लिखा। हिंदुस्तान में कई बेवाएं थीं, अगर वो करना चाहता या अल्लाह ताला की तरफ से उस पर कोई रहमत होती, नरमी होती, तो वो किसी बेवा से कर लेता निकाह। ज़रूरी तो नहीं होता ना कि भाई मखसूस बेवा से करना, किसी भी बेवा से निकाह हो सकता। लेकिन अगर एक बंदा है बकौल इनके वो 73-74 साल ज़िंदगी गुजार के मरता है और फिर भी किसी बेवा से निकाह नहीं होता। हिंदुस्तान में इतनी बेवाएं हैं। आप हिंदुस्तान में हैं ना इस वक्त? नो सॉरी, पीछे से हिंदुस्तान से, इंडिया से ना? जी जी, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में किसी बेवा से निकाह करना किसी आदमी के लिए मुश्किल है, जो अमीर आदमी हो, जिसके पास लाखों रुपया हो। नहीं, उतना मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल नहीं है। एक गरीब बेवा से आप निकाह कर सकते हैं, उसको नान नफके का खर्चा दें, उसको घर बना के दें, वो खुशी से आपसे निकाह कर लेगी। पहले उसका खामद फोत हो गया, वो शुक्र करे कि मुझे सहारा मिल गया। तो इसने सारी जिंदगी किसी बेवा से इसका निकाह नहीं हुआ, तो ये झूठा निकला। ये एक लानती कुत्ता नीचे भौंक रहा है, इसको मैं म्यूट करने लगा हूं। जब ये झूठे पड़ते हैं फिर नबी पाक पर भौंकते हैं, ये है मसला इनका। नबी पर भौंकते हैं? ये देख लें, इसका नॉलेज वाले का मैसेज पढ़ें जरा। मैं इसको म्यूट करने लगा हूं, इस हरामी का मैसेज पढ़ें। नहीं, हाइड हो गए कमेंट, ही हाइड हो गए। नहीं मनो नजर आ रहा है, स्क्रीनशॉट ला दे। आखिरी मैसेज ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾਈਏ जी। अच्छा, तो आपके ये जो 2 सेकंड दे दो, गाल मुकम्मल होने दो। जब इनके सामने मिर्जा कादियानी झूठा साबित होता है, वो नबी पाक पर भौंकना शुरू कर देते। वो कह रहा है तुमने नबी पाक को माज़अल्लाह ऐसा साबित कर दिया। ये वो लानती भौंक रहा है। ये इनको दफा करें। आप अपना बताएं कि आपकी नजर में ये शख्स अगर इसका किसी बेवा से निकाह नहीं हुआ तो झूठा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया। हाँ, बस इतनी बात है। आप ऐसा करें समीर भाई, हम यहाँ बैठे हैं, आप जाएं किसी ब्रॉड पर, ये स्क्रीनशॉट लेके जाएं, पूछ कर आएं। जब आप आएं वापस हमें बताएं कि आप इसको कज़ाब कहते हैं या नहीं कहते। हमारी आगे बात तब चलेगी जब आप हमें बताएंगे कि आप इसको कज़ाब कहते हैं या सच्चा कहते हैं, बस। क्योंकि इस तरह तो फायदा कोई नहीं है। हाँ, सैफी साहब से पूछ के आता हूँ। पूछ के हम अभी बैठे, यहीं पे बैठे इंशाल्लाह, कोई अब हमें जल्दी नहीं। जज़ाकल्लाह। इतनी देर में ये नए साथी आए, इनसे बात करें भाई। नजफ साहब कौन साथी? जी अमर भाई। अतरा राजपूत साहब, माइकोलॉजी। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे हैं? ठीक हैं जी, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। माजरत, मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो भाई ने कॉल पे लिया, मैं बैठ गया। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मैं सुन रहा हूँ, मैं अपने इल्म में इजाफा कर रहा हूँ। तो आप किसी और से लें टाइम, उनसे बातचीत करें इंशाल्लाह। सुन रहा हूँ, अगर किसी मेरी जगह पे किसी को बिठाना भी हो तो आप बिठा सकते हैं। मैं रैंडम बंदे उठा रहा हूँ और उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं। इन मर्जियों से तो बहुत सारी गुफ्तगू हो गई है, तो पहले ही तो जी, इन मर्जियों से तो उलझते हुए हमें तकरीबन कोई 6 साल हो गया इस टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे। ये जो लोग हैं ना, ये कैसी उलझन है इनके पास जब इनके पास कोई दलील नहीं होती, कोई सबूत नहीं होता, कुछ नहीं होता ना, तो फिर ये आते हैं बकवासियात पे। फिर ये जनाब जी वो बहुत दूर तक निकलते हैं। शायद आपने देखा या नहीं देखा होगा, हमारी पुराने बहुत अरसा से चलती रही हैं इनके पीछे। फिर इन्होंने ये काम शुरू किया कि इन्होंने फिर जनाब जी माज़अल्लाह हमारे नबी पे गुस्ताखियाँ करनी शुरू की। फिर इन्होंने जनाब वो कुछ सिख कम्यूनिटी को, हिंदू कम्यूनिटी को साथ लगा के जनाब वो हम पे इस तरह के वार करने शुरू किए कि जिससे अब ये अंदाज़ा कर लो कि हम डर गए कि यार अब ये मामला जो है ना वो हमारे दीन को टारगेट करने, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करने, हमारे ईमान को टारगेट करने पे आ गए हैं। तो अब इनसे बहसना फजूल है। तो फिर ये इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जी, ठीक हो गया जी। क्लीनर साहब माइक खोलें जी। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। जी सर। प्यारा भाई सुनाएं, सबका क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है?
جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تعارف کرا دیں اپنا ذرا. جی بھائی میں موسیٰ جرمن سے بھائی. جی فقہ فقہ کوئی بھی نہیں ڈھونڈ رہا ہوں بھائی. فقہ کوئی بھی نہیں مطلب ہے ہی کوئی نہیں ہے بھائی. ڈھونڈ رہا ہوں مسلمان ہے تلاش کر رہا ہوں. مسلمان ہے. الحمدللہ الحمدللہ. پھر مسلمان سب سے اچھی پہچان ہے کہ فقہ سب سے اچھی پہچان ہے؟ مسلمان. اچھا اچھا چلیں ماشاء اللہ صحیح ہو گیا. کوئی سوال رکھیں؟ سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ جواب دیں تو اچھے طریقے سے سوال کریں گے تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے بہت پیارا انشاءاللہ جواب میں ملے گا. بڑا پیارا سوال کروں گا آپ سے. جی جی میرا سوال کریں. یہ ہے کہ کیا آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے؟ جی عامر بھائی. عامر بھائی موجود ہیں؟ ہم عامر بھائی نذیر احمد مائک کی بات کر رہے ہیں، وہ بھائی مصروف ہوں گے. نہیں مصروفیت کی کوئی بات نہیں ہے. وہ بہت اچھا جواب دیتے ہیں. ہمارے عالمہ میرے استاد ہیں ہمارے جی استاد ہیں تو عامر صاحب استاد ہیں ماشاءاللہ. جی بہت پیارے استاد ہیں. اب پتہ چل گیا کہ آپ بھی اللہ کے ساتھ جو تعلق ڈھونڈ رہے ہیں پتہ چل گیا. عامر بھائی موجود ہو؟ غلطی کی معذرت بھائی، عامر بھائی لیکن نہیں کوئی نہیں غلط سوال نہیں تو کوئی نہیں کیا ٹینشن نہیں سر. کی ہو گیا بڑے اچھے جی طریقے نال سوال کیتا ہے اور اچھے طریقے نال بول رہے ہو. موسٹ ویلکم ہے تھے ماشاءاللہ. اینڈ کوئی ایشو والی گل نہیں. لیکن اس چیز کا جواب تانوں عامر بھائی پورے ہر اس صاحب دے نال دینا. ویسے کیسا تعلق تسی مطلب آدے کہ اللہ تعالیٰ دے نال کیسا تعلق کی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ دعاواں سندا ہے. اللہ بے تعالیٰ شک ہن بھی تانوں اپنی رحمت دے وچ نوازدا ہے. اللہ بے تعالیٰ شک تہاڈے سوالاں دا جواب دیندا ہے. بے اللہ شک. تہاڈے نال گلاں کردا ہے. مطلب کس طرح دی گفتگو چاہندے ہو تسی؟ دعا تے ہر کوئی انسان کردا ہے اور اللہ تعالیٰ بے شک وہ بڑے اچھے طریقے دے نال بھائی دیکھو نا، میرا ایک سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پوچھا کہ ہاں ملک کیسر صاحب موجود ہو کہ سو گئے ہو؟ ملک کیسر صاحب لے یہ بھی ستے پے نے. ملک صاحب ایک سیکنڈ میں انہوں نے نا بیک پہ میسج کرنا. پتہ نہیں عامر بھائی گڈی تو آ رہے نے لیکن تمہیں سوال کا جواب لازمی لبے گا. ٹینشن نہیں لینی. جی بھائی ویٹ کر رہا ہوں. ہاں ٹینشن نہیں لینی. سوال کا تھلے مینوں جواب لکھنا کیونکہ شروع میں کر دیتا سندھیاں نے کہ مرزئی مرزئی لاہور والا کنے کنواں لکھنا دا شروع کہیں کر آ تھلے ایک لکھ منٹ دینا. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ نہیں صاحب کوئی ٹینشن کرمی حاقی صاحب برائے مہربانی کوئی کسی قسم کی ایسی کوئی گل نہیں کرنی جہدے نال کرنا ہے نا نہیں ساڈا گل ہے نا نجف عباس بڑا آسان جو جواب ہے. اساں اللہ نے آسان تو ساکھنا بنایا ہے اور رہی گل اللہ کالی ساڈا کوئی ایسا کوئی بالکل نہیں ہے کہ جی بھائی جی تسی بولو میں اچھا سن رہا بھائی تسی بولو. پتہ کی اس چیز کا جواب جڑا ہے نا تانوں ایک مدلل گفتگو دے نال اسی تے دینا رینڈم اسی جناب اسی سیکھن واسطے بیٹھے ہوئے ہیں. تسی آئے ہو میں یار بھی تے عامر بھائی سیکھن نے آیا نا بیک بھائی. اینڈ میں ویکھو تہاڈی بروڈ نہیں نہیں سن کوئی رہا ہاں مشکل ماشاءاللہ علمی بروڈ چل رہی سی اسلامی بروڈ چل رہی سی تے میں کوئی ہر کوئی بندہ مشکل ہی نہیں. فرقیاں تے گل کر لیا ارلیاں گلاں کر لیا پرلیاں. میں اللہ تعالیٰ دے بھی تے گل ہونی چاہیے نا کہ کنا کو بندے دا تعلق اللہ تعالیٰ نال ہے تے اللہ تعالیٰ دا کنا تعلق بندے نال. مین چیز تے بھائی ویکھو نا اللہ ہے نا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. باقی تے گلاں بعد دیاں نے. لا الہ الا اللہ ویکھو جی تسی انکار کردے ہو کہ لا کردے ہو نا. میں بھائی نا لا تمام الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں کوئی معبود. تمام معبودان باطنہ کا انکار کردے ہو کہ نہیں کردے؟ جی بھائی جدو تمام معبودان جدو سب تو باطنہ بہتا کا پیار کرنے ہیں نا تو کی بندہ تو کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. سر تسی کیوں نہیں پوچھ سکتے یار؟ عامر بھائی مطلب کہ بیک اینڈ میسج کریں جلدی کریں ذرا یار. پتہ نہیں کی ہو گیا یکدم مصروف ہو گئے.
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਲਕ ਬਿੱਲਾ ਤੇ। ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤਲਕ ਬਿੱਲਾ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਲਕ ਬਿੱਲਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਰਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਕ ਬਿੱਲਾ